Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 15 July. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Keep on taking care. जो भी अभी आप प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हो वो सारे प्रिकॉशंस फॉलो करते रहो. Stay indoor children and stay safe. We are doing chapter number 6. So here I am before you with another video from the same chapter, that is working with numbers till 20. And in this chapter children we have started with subtraction. Addition वाला part इस chapter का हमने complete कर लिया. We have learnt the expanded form, that is writing a number in terms of its place. So this is a new concept for you all. Addition subtraction तो 1 से 10 तक वाले lesson में भी हमने किया है. The only thing is that in this lesson we are working with numbers till 20. Okay? Addition subtraction सबको आता है. बस इस chapter में हम 10 के बाद 20 तक के एडिशन 20 तक नंबर्स पे बेस्ड एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. जो नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा दैट इज राइटिंग एनी नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब है कि नंबर को एक्सपैंड करके लिखना इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस. ठीक है, 2 डिजिट नंबर में देयर आर 2 प्लेसेस, वंस एंड टेंस. सिंगल डिजिट नंबर्स हैव ओनली 1 प्लेस, दैट इज वंस. 2 digit numbers have 2 places, that is ones and tens. Okay, 2 places are there. तो किसी भी नंबर को हम उसके प्लेस के टर्म्स में जब लिखते हैं that is known as expanded form. नंबर 19 हमने लिखा, this is number 19. ठीक है, but if we have to write 19 in expanded form, how do we write? कैसे लिखते हैं? 19 को हम लिखेंगे, we all know, ये मैंने बहुत बार बताया है कि we always start from ones place. ठीक है, ones place है and tens place है. तो tens place के नीचे जो डिजिट है that means उस नंबर में उतने tens है, और ones place के नीचे जो डिजिट है that means उतने ones हैं. So since we are working with numbers till 20, so 19 means 1, 10, 9, ones. सपोज नंबर 20. इन नंबर 20 वंस प्लेस पे क्या है? वंस प्लेस पे द डिजिट 0 इज देयर एंड टेंस प्लेस पे वी हैव 2. ओके, सो दैट मीन्स दिस नंबर 20 इट हैज 2 tens and 0 ones. So in expanded form we simply write the number in terms of its place. ठीक है, जिस प्लेस पे जो भी डिजिट है. ओके, क्लियर? सो दिस is a new concept for us. ये हमने इसके पहले तो नहीं किया था. Now we have started with subtraction. हमने subtraction start किया है. Subtraction में what all have we done? अभी तक हमने subtraction में क्या किया है? Like objects के collection में counting the objects and crossing out, ये हमने किया था अभी. ठीक है, जैसे objects का collection है उसमें पहले जितने नंबर को हमें माइनस करना है उतनी ऑब्जेक्ट्स को पहले हमने क्रॉस आउट कर दिया एंड देन काउंट किया हमने. देन फिर हमने क्या किया? स्टिक्स ड्रॉ किया. जितने नंबर से हमको माइनस करना है दैट इज द टोटल नंबर, तो उतनी हम स्टिक्स ड्रॉ करेंगे. और जिस नंबर को हमें माइनस करना है वी विल क्रॉस आउट दैट मेनी स्टिक्स. उतनी स्टिक्स को हम क्रॉस आउट कर देंगे, तो जो स्टिक्स बचेंगी दैट इज द आंसर. ये हमने किया था. ठीक है, एंड देन वी डिड subtraction on number lines. Subtraction on number line भी पहले भी हम कर चुके हैं. We have done it for the second time you can say. पहले जो किया था that was till 10. अभी जो हमने किया this is till 20. ठीक है, तो in the previous class we did subtraction on number line and I gave you 2 sums which you have to do in your notebook also. So children, today we will start with vertical subtraction. So turn to page number 65. This page number. It is 65 and in some of the books it may be 66 also. Okay. So today we will start with vertical subtraction. VERTICAL. Vertical SUBTRACTION. ठीक है, vertical subtraction.
वर्टिकल एडिशन वी हैव डन, हमने वर्टिकल एडिशन किया था. तो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन में भी व्हाट डू, वी राइट द नंबर्स वर्टिकली. हम नंबर्स को वर्टिकली लिखते हैं, वन बिलो अनदर, एक के नीचे एक हम नंबर्स को लिखते हैं इन अ वर्टिकल कॉलम. ठीक है, अभी तो जैसे हमने जो स्टिक्स ड्रॉ करके किया दैट वाज हॉरिजॉन्टल. सपोज इट वाज 15 माइनस 9, तो हमने क्या किया था, 15 माइनस 9 के लिए पहले हमने 15 स्टिक्स ड्रॉ किए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एंड इसमें से हमने 9 माइनस करना है, तो हमने 9 स्टिक्स को क्रॉस आउट कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6. ये किया था. सो दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल. टुडे वी विल बी डूइंग वर्टिकल सब्ट्रैक्शन. वर्टिकल एडिशन जैसे किया, इन द सेम वे आज हम वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, नो फर्स्ट एक एग्जांपल समझा देती हूँ एंड देन आई विल राइट द सम्स एंड उसके बाद करेंगे. ओके, सो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, फर्स्ट इज वी हैव 2 डिजिट्स, सो टेंस एंड वंस. फर्स्ट इज 16 माइनस 4. ओके, 16 minus 4. Now here we have at one's place we have 6 and 4, and at one's place we have 1 and nothing here. जैसे मैंने एडिशन में बताया था कि whenever we start, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, we always start from the ones place. हम हमेशा ones place से ही स्टार्ट करते हैं. Fine. So here also we will start from ones place only. So first you have to subtract 4 from 6. 16 minus 4, that means पहले आपको 6 में से 4 माइनस करना है. ओके, इफ़ यू विश यू कैन ड्रॉ 16 स्टिक्स एंड उसमें से 4 स्टिक्स करके भी आप माइनस करके आंसर लिख सकते हो. इफ़ यू विश यू कैन सब्ट्रैक्ट ऑन योर फिंगर्स ऑल्सो. अगर 16 से आप चाहो तो बैकवर्ड काउंटिंग करके भी हम कर सकते हैं कि 16 में से 4 माइनस करना है, तो वी विल काउंट 4 बैकवर्ड. 16 से 15 14 13 एंड 12 पे हम पहुँचे. ठीक है, बट आई विल टेल यू कि हम वर्टिकल सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. सिंस दिस इज जस्ट अ 2 डिजिट नंबर, तो आप इसको इजीली कर सकते हो. बट इफ़ इट इज़ अ बिगर नंबर, अगर बड़ा नंबर है, अभी जब हम आगे 20 to 100 तक के नंबर्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आप कितनी स्टिक्स बनाओगे. तो दैट इज़ वाई जो इसका करेक्ट प्रोसीजर है कि वी स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, व्हाट डू वी डू फर्स्ट, वी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द डिजिट्स एट वंस प्लेस. मतलब ऊपर जो नंबर लिखा है उससे हमें नीचे वाले नंबर को माइनस करना है. इन एडिशन वी कैन चेंज द ऑर्डर, बट इन सब्ट्रैक्शन वी कैन नॉट डू सो. In addition, when we add 2 numbers, first number and second number, we get the total. But in subtraction, this is the total. जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं that is the total. ठीक है, तो हमें यहाँ पे 16 में से 4 माइनस करना है, तो फर्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6. ठीक है, वंस प्लेस पे क्या है, 6 है एंड 4 है, तो पहले हम 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, वी विल सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6. तो 6 में से 4 माइनस करेंगे, तो यू कैन काउंट बैकवर्ड, यू कैन काउंट फॉरवर्ड. अगर बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो 6 में से 4 करेंगे, तो 6 5 4 3. ठीक है, 4 स्टेप्स पीछे आए, तो 6 5 4 3. कहाँ पहुंचे हम, 2 पे. सो दिस इज 6 माइनस 4 इज 2. और इफ यू डू फॉरवर्ड काउंटिंग, 4 माइनस करना है तो 4 के बाद काउंट फॉरवर्ड. एंड लेट अस सी कि इन हाउ मेनी स्टेप्स, कितने स्टेप्स में हम 6 पे पहुंच जाएंगे. तो 4 के बाद 5 एंड 6, 2 स्टेप्स. तो 6 माइनस 4 इज 2 एंड हियर देयर इज नो नंबर. और यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं है तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट इट इज 0. ठीक है, जब कोई नंबर नहीं होता है तो दैट इज 0. तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ 0 सेज दैट when we subtract 0 from any number, the number remains the same. तो यहाँ पे 0 है, तो 1 में से 0 माइनस किया, बचा 1 ओनली. ठीक है, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12. एंड सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आता है इसमें आप ये नंबर ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस नंबर. सो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16. ओके,
नाउ आई विल राइट द रेस्ट ऑफ द सम्स एंड उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. टेंस एंड वंस. नेक्स्ट इज 13 minus 7. Okay, then 14 minus 9, and then 16 minus 8 and 17 minus 8. 17 minus 8. Okay, now let us start from here. 13 minus 7. अभी 13 minus 7 है. अभी you cannot subtract 7 from 3. Here at one's place we have 3 and यहाँ पे 7 है, तो we cannot subtract 7 from 3. हम 7 को 3 में से माइनस नहीं कर सकते, तो what do we do? We borrow 1 from here. But since अभी हम borrowing वाला नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस यहाँ पे हम 13 में से स्ट्रेट अवे 7 माइनस करेंगे. तो एक तो हम स्टिक्स ड्रॉ करके कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है, 13 स्टिक्स हमने ड्रॉ किया एंड 13 में से हमें 7 माइनस करना है. तो वी विल क्रॉस आउट 7 स्टिक्स. 1 2 3 4 5 6 7. सो वी आर लेफ्ट विथ 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अभी सिंगल डिजिट आंसर है, 6 आ रहा है, तो यू विल राइट दिस 6 एट वंस प्लेस ओनली. ठीक है, 6 आंसर आ रहा है, तो ये नहीं कि आपने इस 6 को कहीं पे भी लिख दिया, यहाँ नहीं लिख करके यू राइट इट समवेयर एल्स. जैसे ये है, यहाँ पे 6 लिख दिया. नहीं, ऐसा नहीं करना है. सिंगल डिजिट नंबर है तो उसको आप वंस प्लेस की जो डिजिट्स है उनके नीचे ही लिखोगे. ओके, दैट इज, क्योंकि 6 आंसर आ रहा है, दैट इज 6 वंस. सो 6 आप वंस प्लेस पे ही लिखोगे. फाइन. हम वी कैन काउंट बैकवर्ड ऑल्सो. 13 में से 7 माइनस करना है, तो 13 12 11 10 9 8 एंड 7. ठीक है, तो 7 के बाद वी आर लेफ्ट विथ 6 5 4 3 2 1. आंसर इज 6. और फॉरवर्ड काउंटिंग करके करोगे तो 7 के बाद कितने स्टेप्स में 13 पे पहुंचेंगे? 7 के बाद 8 9 10 11 12 13. 6 steps. Okay, so the answer is 6. Answer in all the 3 cases, answer will remain the same. आंसर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, है ना? Fine. Now next is 14 minus 9. Again, या तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करके करें, फॉरवर्ड काउंटिंग करके करें, और लेट अस ड्रॉ स्टिक्स. तो सिंस अभी इसके जस्ट पहले हमने स्टिक्स ड्रॉ करके क्रॉस आउट किया था, तो आई विल यूज दैट मेथड ओनली. अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्लास में स्टिक्स ड्रॉ करके उनको क्रॉस आउट किया था, तो मैं वही वाला मेथड फॉलो करूंगी. ठीक है, तो 14 minus 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ओके, 14 स्टिक्स मैंने बनाई. अभी 14 में से हमें कितना माइनस करना है? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now we are left with 1 2 3 4 5. Again सिंगल डिजिट नंबर है, तो उसको आप वंस प्लेस पे ही लिखोगे. 14 minus 9 5 आता है. बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं. 14 13 12 11 10. उसके बाद 9 नंबर्स बचे, तो आंसर इज सॉरी 9 है ना, तो 14 13 12 11 10 9 8 7 6. 9 स्टेप्स बैकवर्ड गए, तो वी आर लेफ्ट विथ 5. और अगर फॉरवर्ड काउंटिंग करते हो तो स्टार्ट फ्रॉम 9 10 11 12 13 14. In 5 steps we reach 14. Okay, then next is 16 minus 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Minus 8, so I will cross out 8 sticks. 1 2 3 4 5 6 7 8. We are left with 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, और अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग करोगे तो 16 15 14 13 12 11 10 9 8 बचा. एंड फॉरवर्ड काउंटिंग करोगे तो भी 8 के बाद
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Then 17 minus 8. So 17 minus 8, I will draw 17 sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sticks. इसमें से हमें 9 माइनस करना है, नहीं सॉरी 8. तो I will cross out 8 sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We are left with 9. ठीक है. अभी अगर बैकवर्ड काउंटिंग किया तो 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. So we are left with 9. और अगर फॉरवर्ड काउंटिंग करते हो 8 से तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9 steps. So the answer is 9. Okay. So children, do these sums in your book. Then उसके बाद आगे का करते हैं. इसको आप करो अपनी बुक में. ओके. ये वाले सम्स आप अपनी बुक में करो. इसके बाद फिर आगे का करते हैं. आई होप एवरीवन इज डन. हो गया सबका. सबका हो गया. इरेज कर दो इसको. नाउ नेक्स्ट अभी सम करते हैं. इसको इरेज कर रही हूँ. ओके. आई होप एवरीवन हैज डन इट. तो ये अभी मैं इरेज करती हूँ. 10 वंस मैंने इरेज कर रही हूँ बिकॉज वो फिर से मुझे लिखना पड़ेगा. सो दिस आई एम नॉट इरेजिंग. अभी सम्स लिख लें, फिर उसके बाद आगे के सम्स करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज 12 minus 6. 12 minus 6. Then 15 minus 7. Then 11 minus 4. 18 minus 9 and 19 minus 13. Okay. Now let us do these. 12 minus 6. जैसे मैंने बताया था कि we first subtract the digits at ones place. ठीक है. उस केस में क्या करते हैं कि जैसे अगर ones place में if जो ऊपर वाली डिजिट है, if this is bigger than this one, मतलब if this digit is more than this one जिसको हमें subtract करना है, तो हम क्या करते हैं, we borrow 1 10 from tens place. But right now since we are not doing sums with carry forward or borrowing, अभी हम कैरी फॉरवर्ड या बोरिंग वाले सम्स नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं वैसे अभी नहीं कर रही हूँ. 12 minus 6. सो व्हाट डू वी डू. फिंगर पे भी आप कर सकते हो. ठीक है. मैं स्टिक्स ड्रॉ करके कर रही हूँ. फाइन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके. 12 स्टिक्स मैंने बनाई. नाउ फ्रॉम 12 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 6. 1 2 3 4 5 6. So we are left with 1 2 3 4 5 6. So 12 minus 6 is 6. Okay. और अगर इसको बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 12 11 10 9 8 7. We are left with 6. and अगर फॉरवर्ड काउंट करेंगे तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12. Okay. Fine. Then 15 minus 7. 15 minus 7 है, तो again I will make 15 lines first. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है. 15 उसमें से हमें क्या माइनस करना है, I have to subtract 7. तो 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. and we are left with 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. ठीक है.
बैकवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हो. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. So we are left with 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8. So the answer is 8. और अगर आप फॉरवर्ड काउंटिंग करते हो, फॉरवर्ड काउंटिंग करने में सिंस वी हैव टू सबट्रैक्ट 7, तो 7 से हम काउंटिंग करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो 8 से 7 से हमने काउंट किया ना, 7 माइनस करना है, तो 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. In 8 steps we reach 15. So 15 minus 7 is equal to 8. Okay. Then 11 minus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है. अब 11 में से 4 माइनस करना है, तो 1, 2, 3, 4 माइनस करना है, तो मैंने 4 स्टिक्स क्रॉस आउट कर दिया. क्रॉस आउट करने के बाद आई एम लेफ्ट विथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टिक्स. ठीक है. बैकवर्ड काउंटिंग करोगे 11 से, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 11. तो 11, 10, 9, 8. ठीक है. उसके बाद कितने नंबर्स बचे? 7 नंबर्स. एंड इफ यू काउंट फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए हम कहाँ से करते हैं? जिस नंबर को माइनस करना है. तो 4 से जब आप करोगे, तो 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 से जिस नंबर को माइनस कर रहे हैं हम वहाँ से काउंट करते हैं एंड वी सी कि कितने काउंट में वी रीच दिस टोटल. यहाँ पे हम 7 काउंट में 11 पे पहुँच जा रहे हैं. आंसर इज 7. ठीक है. देन 18 माइनस 9. अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ठीक है. 18 में से हमें कितना माइनस करना है? वी हैव टू सबट्रैक्ट 9 फ्रॉम 18. ठीक है. तो अभी 9, 18 करना है. 18 स्टिक्स मैंने बनाई, इसमें से हम 9 स्टिक्स को क्रॉस आउट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टिक्स को क्रॉस आउट कर दिया. तो वी आर लेफ्ट विथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टिक्स. 9. ठीक है. अगर फॉरवर्ड काउंटिंग करोगे, बैकवर्ड काउंटिंग करोगे, आंसर विल बी 9 ओनली. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. ओके. सो 9 एंड 9 से फॉरवर्ड काउंट करेंगे, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9 is half of 18. ठीक है ना. 18 का हाफ है, 18 का आधा है 9. तो 18 में से जब हमने 9 माइनस किया, तो आंसर इज ऑल्सो 9. ओके. नाउ नेक्स्ट इज 19 minus 30. नाउ हियर चिल्ड्रेन, यहाँ पे वी हैव डिजिट्स एट वंस प्लेस. सारे नंबर्स में वंस प्लेस पे देर आर 2 डिजिट, बट बाकी सब में हमने देखा कि सिंस जिस डिजिट से हमें माइनस करना है दैट इज लेस देन. ठीक है. जिस डिजिट को हम, जिस नंबर को माइनस कर रहे हैं वो बड़ा है, और जिससे हमको माइनस करना है वो छोटा है. ठीक है. तो इसीलिए मैंने स्टिक्स ड्रॉ करके किया. नाउ हियर 9 इज मोर देन 3. हियर वी हैव टू सबट्रैक्ट 13 फ्रॉम 19. 13 को हमें 19 में से माइनस करना है. तो 9 एट वंस प्लेस वी हैव 9 and 3. ठीक है. सो 9 इज मोर देन 3, तो हम 9 में से 3 माइनस कर सकते हैं. 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 9, 8, 7. 9 minus 3 is 6 and 1 minus 1 क्या होगा? अगर किसी नंबर से हम सेम नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 0. यू हैव 1 pencil and that also is taken away. वो भी किसी ने ले ली या गुम हो गई, तो यू आर लेफ्ट विथ नथिंग. आपके पास एक भी पेंसिल नहीं बची, तो 1 minus 1 है 0. ठीक है. तो यहाँ पे हम 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बट सिंस इट इज अ 2 digit नंबर, इसको भी मैंने 2 digit बनाने के लिए यहाँ पे 0 लिखा है. किसी भी डिजिट के लेफ्ट साइड में 0 की कोई वैल्यू नहीं है. तो वेदर आई राइट 0, 6 और ओनली 6, इट इज सेम. सो चिल्ड्रन, डू दीज सम्स इन योर बुक. इसको आप अपनी बुक में करो. आई होप चिल्ड्रन यू ऑल हैव डन दीज सम्स इन योर बुक. ये वाले सम्स अपने बुक में कर लिए. इसको मैं इरेज करूँ. आई होप एवरीवन हैज डन इट.
और अगर आपने नहीं भी किया है तो आई एम श्योर यहाँ पे भी जैसे 0 अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो आई कैन राइट 6, आई कैन राइट 06 ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये 1 तो अब यहाँ पे है नहीं, दिस 1 हैज बीन टेकन अवे, ये तो 12 के साथ मिल गया, यहाँ हमने 12 में से 6 माइनस किया है, तो यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख भी सकते हैं एंड वी कैन लीव इट लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। 0 हम बस कई बार लिखते हैं टू मेक इट ए 2 डिजिट नंबर, एक सिमिलर नंबर बनाने के लिए, दिस इज ऑल्सो 2 डिजिट नंबर, ये माइनस किया तो यहाँ पर भी हमने कि कोई बाई मिस्टेक 1 ना लिख दे, हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, बट 0 हैज़ गॉट नो वैल्यू हियर, यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 आप लिखो चाहे मत लिखो, ओके। सो नाउ लेट मी राइट फ्यू मोर सम्स चिल्ड्रन, अभी थोड़े से और सम्स लिख दूँ, ज़्यादा नहीं लिखूँगी बिकॉज वी डू नॉट हैव सो मच ऑफ टाइम, ठीक है, इससे थोड़े से ही लिखूँगी, रेस्ट ऑफ द सम्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी सम्स हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 17 माइनस 9, ठीक है, 17 माइनस 9, देन 16 माइनस 7 एंड 13 माइनस 10। पहले मैं आई विल राइट दीज 3 सम्स, ठीक है, अगर टाइम बचेगा देन आई विल राइट फ्यू मोर, तब हम और करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर ओनली टुडे, okay. Now first is 17 minus 9. Now again we have to subtract 9 from 17, हमको 17 में से 9 subtract करना है। Now at one's place we have 7 and 9, ठीक है, one's place पे 7 है and 9 है, and 9 is greater than 7, तो हम 7 में से तो 9 नहीं माइनस कर सकते, तो I will draw 17 sticks, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sticks मैंने ड्रॉ किया। नाउ फ्रॉम 17 सिंस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 9, तो आई विल क्रॉस आउट 9 sticks, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वी आर लेफ्ट विथ 8 sticks। बैकवर्ड काउंटिंग भी करोगे तो 17 16 15 14 13 12 11 10 9, वी आर लेफ्ट विथ 8, ठीक है, एंड फॉरवर्ड काउंटिंग में भी 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 काउंट्स में हम 17 पे पहुंच गए, ओके, सो द आंसर इज 8। देन नेक्स्ट इज 16 माइनस 7, अगेन दिस नंबर इज स्मॉलर, दिस इज बिगर, तो 16 लाइन्स में स्टिक्स ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, अभी 16 में से हमें 7 माइनस करना है, तो आई विल क्रॉस आउट 7 स्टिक्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो आई एम लेफ्ट विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, ओके। बैकवर्ड काउंटिंग करोगे तो 16 15 14 13 12 11 10, लेफ्ट विथ 9, और फॉरवर्ड काउंटिंग किया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, in 9 counts we reach 16, okay. 13 minus 10, here 3 is greater than 0, so we can easily subtract 0 from 3. अभी subtraction property of 0 says that when we subtract 0 from any number, the number remains the same, there is no change, क्योंकि जब हम 0 means nothing, when we are not taking out anything, जब हम कुछ नहीं निकालेंगे तो हमारे पास the answer will remain the same, है ना, तो 3 में से 0, that means 3 में से हम कुछ भी नहीं subtract कर रहे हैं, so this 3 will remain as it is 3, ठीक है ना, and 1 minus 1, that is we have 110, and उस 110 में से हमने 110 ले लिया, तो we are left with 0 10 मतलब nothing, तो यहाँ पे हम 1 minus 1 0 भी लिख सकते हैं, और we can leave it as it is also, हम यहाँ पे इसको सिर्फ as it is 3 भी छोड़ सकते हैं, ओके। 3 1 स्पेस पे 3 minus 0 is 3,
and 110 minus 110. किसी भी number से if we take away that number, it will be 0, and from any number if we take away 0, the number will remain the same. Okay children, so today I will stop here only. Rest of the sums we will be doing in the next class. Okay, so that is all for the day. Thank you and have a good day.